Hello students, good mornings. Welcome here, welcome our YouTube channel Nananji Modern School. We have completed our previous video in this lesson number 6 of adverbs. So today I will start lesson number 6 explanation. So हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने क्या देखा था तो कि हमारा जो लेसन नंबर 6 है उसका जो हार्ड वर्ड्स है वो मैंने आपको लिखवा दिया था। तो आज हम यहाँ पे जो हमें लेसन दिया है वो हम अच्छे से रीड करेंगे और फिर उसके बाद उसकी जो समझूती है वो हम लेंगे। सो फर्स्ट मैं यहाँ पे रीड करती हूँ। तो टेक योर टर्म बुक एंड ओपन पेज नंबर 42। तो 42 नंबर पर आपको जो लेसन नंबर दिया है वो है नंबर 6 का और उसका जो टाइटल है वो है हाउ द सी बिकम ब्लू। हाउ द सी बिकम ब्लू यानी कि जो सी है जो समुद्र है वो किस तरह से बिकेम यानी किस तरह से ब्लू हो गया। तो इस तरह का जो चेंजिंग हुआ था वो किस तरह से हुआ था वो स्टोरी हमें यहाँ पे दी गई है। सो हम सुनते हैं। सो सबसे पहले आपको ये येलो लाइन जो दी गई है वो मैं रीड करती हूँ। उसमें क्या पूछा है हमें तो कि वी लिव इन कलरफुल वर्ल्ड। हम लोग किसमें रहते हैं तो कि जो कलरफुल वर्ल्ड है जो दुनिया है उसमें हम लोग रहते हैं। व्हाट कलर आर दी फॉलोइंग। हमें यहाँ पे जो थिंग्स दिए गए हैं जो ऑब्जेक्ट दी गई है उसका जो नेम है वो कौन से कलर की है वो हमें बताना है। तो फर्स्ट हमें दिया है स्काई। सो स्काई जो है उसका कलर कौन सा है। सो स्काई जो है उसका कलर हमारा है ब्लू। देन नेक्स्ट हमें दिया है क्लाउड। सो बादल जो है उसके कलर कौन सा है उसका कलर कौन सा है। सो क्लाउड जो है वो व्हाइट कलर के होते हैं यानी क्लाउड का कलर कौन सा है व्हाइट है। देन सन। सो सन का तो आप सबको पता है कि सन जो है वो कैसा है तो सन इज येलो। देन नेक्स्ट वन इज मून। तो मून जो है मून इज व्हाइट। कौन सा कलर है मून का व्हाइट है। देन नेक्स्ट है ट्री। सो ट्री व्हाट इज कलर ऑफ ट्री तो ट्री का कलर कौन सा है। तो ट्री का जो कलर है वो है ग्रीन। सो अब मैं यहाँ पे रीड करती हूँ तो सबका ध्यान अपनी टर्म बुक में। The little rainbow fairy had big can of paints red, yellow, green, orange, violet, indigo and blue. She had nothing to do and was feeling bored. Everything down below on the earth was colored. Trees were green with pretty red, pink and yellow flowers. The fruits on the trees were yellow, orange and red. Even the animals had their own lovely colors. Poor fairy had nothing to paint. Just then, far below, she saw a tiger walking in the jungle, the sand yellow with dirty brown streaks. She thought, I'm sure the tiger would not mind a little chance. She said she dipped her long brush into the can of blue and plop plop. She dropped two large globes of paint on the tiger. The tree need a chance too, she said. Another blob of color and the tree were all blue. What pretty blue trees, she said and laughed. Blue was her favorite color. Then next page number 43. Down below, some tiny fluffy rabbits were busy eating leaves. Suddenly, big blue blobs of paint fell on them, turning them all blue. Wonder what that was, thought Father Rabbit. Why do I feel so bad? It is not raining. The rainbow fairy was having so much fun. Big drops of blue fell all over the jungle town. Every bird, animals and even the tiny insect creeping on the ground became blue. The animals looked at one another and were shocked.
At first they laughed, but soon their laughter changed to anger. All the animals rushed to their king, the lion. They stopped and stared. Even the king of the jungle was bright blue. "O king, you are blue all over," they cried. The lion was very angry. He looked up at the sky and roared loudly. "Who dares to change the colors of nature?" he shouted. "Come out at once and show yourself." The whole jungle shook. The animals sat looking up at the sky. There was no answer. The rainbow fairy heard the loud roar. She was frightened. Why was the lion so angry? She was only having a little fun. She peeped from behind the rainbow. All the animals were looking up at her. "So it is you, Rainbow Fairy," said the lion. "We all want our colored bags," he shouted. Yes, we do, shouted all the animals. Now, then next page, page number 44. Now, she did not know what to do. She began to cry. Boo boo, big tears fell down the ground one by one. She cried and cried. Her tears fell down on the animals, the birds and the trees. The tears washed off of the blue color. Only the tiny bluebell flowers growing in the shade of the tall trees remained blue. Soon there was a blue flood all over the jungle. Blue water began following everywhere. The blue water began to fill the sea. That is how the water in the sea looks blue. तो इस तरह से हमें यहाँ पे लेसन जो है वो दिया गया है. तो अब मैं लाइन टू लाइन यहाँ पे लिखती जा रही हूँ और फिर बाद में आपको समझाती हूँ. Little rainbow fairy had big cap of cans of cans. Red, yellow, green, orange, violet, indigo, and blue. She had nothing. She had nothing to do and was feeling bored. Everything
down, everything down, below, on the earth was colored. Trees were green, green with pretty and pretty red, pink and yellow flowers. The fruits on the fruits on the trees were yellow. Trees were yellow. Yellow, orange, and red. Even the animals, animals had their own lovely colors. Poor fairy had nothing to spend. तो इस तरह से हमारे पास जो पैराग्राफ है वो हमें दिया है। सो क्या है, जो हमें दिया है कि the little rainbow fairy had big can of paints. रेनबो फेरी जो थी कैसी थी, तो कि लिटिल रेनबो फेरी, छोटी सी जो एक रेनबो फेरी थी। फेरी मींस क्या होता है, परी। क्या होता है, परी। यानी कि द लिटिल रेनबो फेरी हैड बिग कैन्स ऑफ पेंट। उसके पास क्या था, तो कि बिग कैन्स। किसका पेन था, तो कि ऑफ पेंट्स। यानी कि जो रेनबो फेरी थी, जो लिटिल रेनबो फेरी थी, जो छोटी सी परी थी, उसके पास क्या था, तो कि कैन ऑफ पेंट्स। यानी कि बड़ा सा कैन था। किसका कैन था, तो कि पेंट्स का, कलर करने का जो डिब्बा है वो था। किसके पास था, तो कि लिटिल रेनबो फेरी के पास। उसमें कौन कौन से कलर थे, तो उस डिब्बे में रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज एंड वायोलेट।
कौन कौन से कलर थे? रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू। टोटल कितने कलर्स थे उस डब्बे में? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। यानी कि रेनबो फेरी के पास जो डिब्बा था उसमें टोटल 7 कलर थे। कितने कलर थे? 7। तो कौन कौन से कलर थे? तो रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू। तो इस तरह से टोटल 7 कलर थे उस डब्बे में। देन नेक्स्ट लाइन, शी हैड नथिंग टू डू एंड वाज फीलिंग बोर्ड। उसके पास क्या नहीं था? कुछ नहीं था, इसीलिए वो कैसी थी? तो कि बोर। उसकी जो फीलिंग थी वो कैसी थी? बोर थी। यानी उसको क्या हुआ था? तो कि वो एकदम से सैड हो गई थी। तो एवरीथिंग डाउन बिलो ऑन दी अर्थ वाज कलर। उसने क्या देखा कि एवरीथिंग यानी सब कुछ नीचे क्या है? तो कि अर्थ यानी कि जो पृथ्वी है, जो अर्थ है वो कैसी है? कलरफुल है, रंगीन है। देन नेक्स्ट लाइन, ट्री वेर ग्रीन विथ प्रिटी। ट्री जो है वो कैसा था? तो कि एकदम से प्रिटी था, सुंदर था। उसमें कौन कौन से कलर थे? तो रेड, पिंक एंड येलो। किस कलर के ट्री थे? तो रेड थे, पिंक थे एंड येलो। येलो फ्लावर, उसके जो फ्लावर जो थे ट्री के जो फ्लावर है वो कौन कौन से कलर के थे? तो रेड, ग्रीन एंड येलो। इस तरह से रंगीन फ्लावर से जो ट्री जो था वो भरा हुआ था। इसीलिए उसको क्या हुआ? क्योंकि वो देखकर उसको अपनी ओर से क्या होने लगी? तो बोझ होने लगी कि मेरे पास तो कलर करने के लिए ब्रश भी नहीं है और ये सब तो कितने सारे कलरफुल है। इस तरह से उसने सोचा। The fruits on the trees were yellow, orange and red. उसके जो फ्रूट है, जो ट्री में जो फ्रूट होते हैं वो भी कौन से कलर के थे? तो कि येलो, ऑरेंज and red. Even the animals had their own lovely color. और ट्री के पास तो था ही, लेकिन दूसरा जो एनिमल्स थे उसके पास भी क्या था? तो देयर यानी कि अपने अपने कलर थे, लवली यानी कि प्यारे से कलर थे। पुअर फेरी हैड नथिंग टू पेंट। लेकिन जो बेचारी जो फेरी थी, जो परी थी, उसके पास पेंट करने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी ब्रश जो था वो भी नहीं था, यानी कि उसकी हेल्प से वो पेंट कर सके। यानी कि उसके पास जो डिब्बा है कलर का वो तो था, लेकिन पेंट करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए वो क्या हो गई थी? क्योंकि वो एकदम से बोर हो गई थी। फिर से मैं रिपीट करती हूँ। द लिटिल रेनबो फेरी हैड अ बिग कैच ऑफ पेंट्स। यानी कि जो लिटिल फेरी थी, जो छोटी सी परी थी, उसके पास क्या था? तो कि छोटा सा डिब्बा था, बिग डिब्बा था। सॉरी, कैसा डिब्बा था? तो कि बिग डिब्बा था। और उसमें कौन कौन से कलर थे? तो कि उसमें उस कैन में जो कलर थे वो थे रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू। यानी इस तरह उसके पास टोटल 7 कलर जो था वो उस डिब्बे में था। यानी जो बड़ा वाला जो डिब्बा था उसमें टोटल कितने कलर थे? 7 कलर थे। कौन कौन से थे? तो कि रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू। Then she had nothing to do and was feeling bored. उसके पास कुछ पेंट करने के लिए नहीं था, इसलिए उसकी जो फीलिंग थी वो कैसी थी? तो कि वो एकदम बोर हो गई थी, क्योंकि उसके पास डिब्बा तो था कलर का, लेकिन उसको पेंट करने के लिए उसके पास कुछ भी जो ब्रश जो था वो नहीं था। Everything down below on the earth was color. उसने नीचे देखा तो उसने क्या देखा कि एवरीथिंग यानी कि सब कुछ जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, उसमें सब कुछ कैसा
कैसा है तो कि रंगीन है, कलरफुल है। ट्रीज क्या क्या कलरफुल है तो कि ट्रीज वेर ग्रीन विथ प्रिटी रेड पिंक एंड येलो फ्लावर्स। यानी जो ट्री था उसके ऊपर जो फ्लावर है वो कौन कौन से कलर के थे तो कि येलो, रेड पिंक एंड येलो कलर के थे। कौन कौन से फ्लावर थे तो कि रेड, पिंक एंड येलो कलर के फ्लावर थे। और दूसरा क्या था तो कि उसमें फ्रूट भी था। तो फ्रूट कौन से कलर के थे तो कि जो फ्रूट था वो था उनकी ट्रीज वेर येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो उसमें फ्रूट भी कौन कौन से कलर के थे, येलो थे, रेड थे एंड ऑरेंज थे। इवन द एनिमल्स हैड देयर ओन लवली कलर। और वो तो था ट्री के पास, तो ट्री जो है उसके पास कलरफुल फ्लावर भी थे और फ्लावर्स भी थे और फ्रूट भी थे। और उसके बाद एनिमल जो है उसके पास भी अपने लवली कलर थे, अपने प्यारे प्यारे जो कलर्स है वो भी थे। कौन कौन से कलर थे तो कि जो एनिमल्स थे उसके पास भी लवली कलर थे। लेकिन एक पुअर जो फेरी थी ऐसी थी जिसके पास पेंट करने के लिए कुछ भी नहीं था। सो आई होप कि आपको फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो समझ में आ गया है। सो अब इसके बाद का जो पैराग्राफ है वो हम लर्न करते हैं। Then next paragraph, just then far below she saw a tiger walking in the jungle. Jungle. The sun yellow with dirty brown streets. She thought, I'm sure I'm sure the tiger would not mind a little change. Mind a little change.
Can for blue and frog. She draw. She draw two large blocks of tiger. Pen on the tiger. On the tiger. So क्या है हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ? जस्ट दैट फार बिलो, देन थोड़ी ही देर में उसने क्या किया? फार बिलो, नीचे की ओर देखा। शी सो अ टाइगर वॉकिंग इन द जंगल, तो उसने क्या देखा? जो टाइगर जो था वो चल के आ रहा था इन दी जंगल। किसमें? तो के जंगल के अंदर। द सैंड येलो विद डर्टी ब्राउन स्ट्रीक, क्या लेकर आया था? क्योंकि डर्टी एकदम गंदी सी ब्राउन जो स्ट्रीक से वो लेकर चल के आ रहा था। शी थॉट, उसने क्या सोचा कि आई एम श्योर द टाइगर वुड नॉट माइंड अ लिटिल चेंज, टाइगर को कुछ भी दिक्कत नहीं होगी जो मैं थोड़ा सा उसमें चेंजिंग कर दूंगी तो। शी सेड शी डिप्ड हर लॉन्ग ब्रश, उसने क्या किया? उसने कहा कि शी डिप्ड her long brush, यानी कि उसने क्या किया? तो कि डिप यानी कि डुबाया, उसका जो ब्रश था उसको उसने डुबाकर इनटू द कैन, इसमें डुबाया तो के कैन के अंदर। ब्लू एंड प्लॉप, किस कलर में डुबाया? तो कि ब्लू कलर के अंदर उसका जो ब्रश था वो ऐसे डुबाया और क्या हुआ? तो प्लॉप शी ड्रॉप टू लार्ज ब्लॉक्स यानी कि बूंद। तो उसमें से क्या हुआ? दो लार्ज जो बड़ी सी दो बड़ी सी बूंदे जो थी वो किस पे जा गिरी? तो पैंट ऑन दी टाइगर, वो किसको पैंट कर दिया? तो कि टाइगर को। यानी कि उसके बाद उसने क्या किया? तो कि जस्ट देन फार बिलो, देन उसके बाद उसने क्या किया? थोड़ी दूर उसने देखा तो उसने क्या देखा? शी सो, उसने देखा, क्या देखा? कि टाइगर वॉकिंग इन द जंगल, जो टाइगर है वो चलकर कहाँ पे आ रहा है? कि जंगल की ओर चल के आ रहा है। दिस सैंड येलो विद डर्टी ब्राउन स्ट्रीप, जो उसके जो स्ट्रीप जो थे वो कैसे थे? तो के डर्टी, इसीलिए उसने क्या सोचा? यानी कि जो लिटिल फेरी थी उसने क्या सोचा? कि आई एम श्योर द टाइगर वुड नॉट माइंड अ लिटिल चेंज, यानी कि मैं यदि टाइगर को चेंज कर दूंगी, थोड़ा सा चेंज कर दूंगी तो टाइगर जो है उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। She said, उसने ऐसा कहा। She dipped her long brush into the can of blue and plop plop, कैसी आवाज आई? तो plop plop. She dropped two large blocks, तो दो जो बड़ी सी जो दो बूंदे थी उसको कहाँ पेंट किया? तो दो बड़ी बूंदों से उसने टाइगर जो था उसको पेंट कर दिया। तो इस तरह से जो लिटिल फेरी थी उसने क्या चेंज कर दिया? तो कि जो टाइगर जो था उसमें दो बड़ी सी बूंदे जो है वो टाइगर के ऊपर डाल दी और क्या हुआ? टाइगर को कलरफुल बना दिया। तो इस तरह से यहाँ पे जो लिटिल फेरी है वो सबसे पहले क्या थी? तो मोर थी,
क्यों वो थी? क्योंकि उसके पास डिब्बा तो था कलर का, लेकिन उसके पास कलर फुल करने के लिए कुछ भी जो थी वो नहीं थी, यानी कि वो कलर किसमें करे, ऐसा वो सोच रही थी। उसके पास कलर का डिब्बा तो था, लेकिन कलर करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो क्या कर रही थी, क्योंकि बोर हो रही थी। देन थोड़ी ही देर में उसने क्या देखा, तो कि जो टाइगर जो था वो चल के आ रहा था। कहाँ पे चल के आ रहा था? तो कि जंगल की ओर से। तो उसने क्या सोचा कि जो लिटिल फेरी है उसने टाइगर को देखकर सोचा कि यदि मैं टाइगर को थोड़ा सा चेंज कर दूंगी तो टाइगर को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए उसने क्या किया, तो कि अपना ब्रश निकाला, और जो अपना ब्रश जो है वो कहाँ पे डाला, तो कि अपने पास जो कैन और पेंट्स यानी कि जो कैन का डिब्बा था, जो पेंट्स का जो डिब्बा था उसमें वो ब्रश डालकर दो बूंदे जो थी वो किस पर गिराई, तो कि जो टाइगर जो था उसके ऊपर पेंट कर दिया, यानी कि जो टाइगर जो था उसको उसने किसा बना दिया, तो कि कलरफुल। तो इस तरह से हमारे पास ये जो रेनबो फेरी वाला जो लेसन है उसमें हम यहाँ तक ही देखेंगे। आपको याद रखना है कि इस वीडियो में हमने क्या देखा था, तो कि जो लिटिल फेरी थी उसने क्या किया, तो कि टाइगर जो था उसको कलरफुल बना दिया था। अब आगे की जो स्टोरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो नाउ वी डू हैव अ नाइस डे, गुड बाय।